everyone, welcome to the Intelligent Learners. In this video, we'll be starting the topic natural vegetation and ecological regions of India. As you might be knowing, India's natural vegetation it reflects the interaction of climate, soil, and relief, giving rise to diverse ecological regions ranging from tropical rainforest to alpine forests and desert vegetation. ठीक है ये ऐसे इंट्रोडक्शन है not important. ठीक है. Now these questions we'll come back to these questions once we have done the theory portion of this chapter. ठीक है. So it will be better to do them afterwards. ठीक है. Now इंडिया का natural vegetation. So this is the diagram. यहाँ पे ऐसे overall अभी overall overview ले सकते हैं कि tropical evergreen forest ये dark green portion है northeast में and even on western ghats and parts of eastern ghats as well. Then you have tropical deciduous forest which is on the majority portion of the country, majority of the subcontinent. Then you have montane forests in mountainous regions है ना, ये पूरा mountain forest है. Then we have mangroves. Mangroves are यहाँ पे सुंदरबन area में. Then there are portions of them in the eastern ghats as well. Then we have the tropical thorn forests. These are generally found in arid regions. ठीक है, ये पूरा we have the tropical thorn forest over here. ठीक है. Now we'll be looking at each of the types और फिर देखते हैं. सबसे पहले ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ था, नॉर्थ ईस्ट में देखा था हमने ये वाला पोर्शन. देन पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स एज वेल. ठीक है. सो यहाँ पे देखते हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या होती है यहाँ पे. वी हैव वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट इन दिस रीजन विद एनुअल रेनफॉल. नाउ एनुअल रेनफॉल इज अबव 200 सेंटीमीटर एंड द मीन एनुअल टेम्परेचर इट विल बी अबव 22 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. तो ये पता होना चाहिए कि देयर विल बी एनुअल रेनफॉल ऑफ मतलब वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल दैट इज़ अबाउट 200 सेंटीमीटर्स और टेम्परेचर विल बी ऑल्सो मॉडरेट ओनली 22 डिग्री सेल्सियस का ही रहेगा. हाउ डू यू रिमेंबर दिस टेम्परेचर. आप इसको अपने AC के टेम्परेचर से कंपेयर कर सकते हैं कि आप जहाँ पे भी बैठते हैं पढ़ने के लिए वहाँ अगर AC है तो हाउ मच टेम्परेचर डू यू पुट एंड ये वाला कितना है. ठीक है. सो दैट वे इट विल बी ईजियर टू लिंक एंड रिमेंबर दैट. ठीक है. नेक्स्ट है लोकेशन कहाँ है. वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स, लक्षद्वीप आइलैंड्स, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु कोस्ट, देन पूर्वांचल हिल्स जो नॉर्थ ईस्ट में है वहाँ पे भी. ठीक है. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगे. इट विल बी वेरी डेंस, वेल स्ट्रैटिफाइड, मल्टी लेयर्ड फॉरेस्ट. देयर विल बी shrubs and creepers at the ground level. Then short trees होंगे. Then there are tall emergent trees. Rapid leaf litter का decomposition होगा है ना. And bare soil का appearance will also be there. ठीक है. Thick canopy will be present and little sunlight will reach the ground. Now one thing which you need to remember here is this portion कि leaf litter will decompose very fast and bare soil appearance will also be there. ठीक है. Important flora क्या है. Flora means the plants and trees. So we have ebony, mahogany, rosewood, rubber, any, jackfruit and epiphytes. ठीक है. Epiphytes are plants which grow on other plants. ठीक है. Symbiotic type का कुछ relation रहेगा इनका है ना. So these are the main ones. Apart from that देखो मेन इंडिजिनियस ट्राइब्स कौन सी है. नागा. देखो जो भी नॉर्थ ईस्ट में है वो सब. तो नागा कुकी इन दोनों के बीच में देयर इज़ अ डिस्प्यूट विच इज़ गोइंग ऑन इन मणिपुर है ना. अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव गारो, खासी, जयंतिया वो सब चीज़ें. केरला में वी हैव चोला नायकन्स. हाउ विल यू रिमेंबर दैट. यू कैन लिंक इट विद चोलास. चोलास वर ऑल्सो इन दिस सर्दर्न पोर्शन ऑफ इंडिया. तो चोला नायकन ट्राइब इज़ इन केरला. ठीक है. Apart from that, we have various PBTGs of Andaman and Nicobar as well, like Jarawas, Sentinelese, Onges, Shompen, all of these. ठीक है. So these PBTGs are also included है ना. तो ये हो गया. अभी इसमें देखते हैं कहाँ पे है. ठीक है. तो इसमें वी हैव डन द मेजर पोर्शन इन दिस
one thing which you need to remember is the rapid leaf litter decomposition. And apart from that, we'll now try to learn the flora, क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे. तो एबनी, देखो, आई जस्ट ओपन इट ऑन द साइड. एबनी में क्या रहता है, एबनी इज अ, अगेन वही है, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन में फाइंड होने वाला इट इज़ अ ट्री. ठीक है, इट इज़ डेंस ब्लैक ब्राउन हार्डवुड. ठीक है, वेरी हार्डवुड ट्री रहता है ये, है ना. एंड बस इतना ही याद रखो, इसका डीप ब्लैक कलर का बार्क होती है. एबनी, दैट इज़ वाई द नेम कम्स एबनी. डीप ब्लैक colored bark, bark and wood, all of it. ठीक है, सो एबनी, उसका नाम ही एबनी है. एबनी इज ऑल्सो द नेम ऑफ अ कलर. ठीक है, देन वी हैव महोगनी. ठीक है, एबनी से राइमिंग है महोगनी, इसको भी देख लेते हैं. देखो, महोगनी ट्री जो है, इट इज़ अगेन अ ट्रॉपिकल हार्डवुड ट्री. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव रोजवुड. रोजवुड शीशम को ही बोलते हैं, है ना. देन वही टिम्बर के लिए यूज़ करते हैं. देन वी हैव रबर. रबर इज़ प्रेजेंट इन वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट्स. देन एनी. एनी एक जैक फ्रूट टाइप का कुछ रहता है. ठीक है, इसको वाइल्ड जैक भी बोलते हैं. Apart from that, we have the epiphytes as well. Epiphytes, as I told you, one plant growing over other plant. ठीक है, symbiotic relationship रहेगा उनमें. Now, now we'll move to the tropical semi-evergreen forests. है ना, ये कहाँ पे रहेंगे, देखो. फर्स्ट ऑफ ऑल, वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशंस रहेगा, एंड रेनफॉल विल बी बिटवीन 200 to 250 सेंटीमीटर्स. ठीक है, मीन एनुअल टेम्परेचर विल बी स्लाइटली हायर. यहाँ पे 22 डिग्री सेल्सियस था, यहाँ पे इट इज़ हायर इन बोथ सेंसेस, 24 to 27 डिग्री सेल्सियस है. रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल बी अराउंड 75% हियर. ठीक है, एंड ये मॉडरेटली लॉन्ग ड्राई सीजन रहेगा, अनलाइक दैट इन एवरग्रीन फॉरेस्ट्स. ठीक है, सो लोकेशन कहाँ है, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, देन असम, lower slopes of eastern Himalayas, Odisha and Andaman Islands. So I'll just see if it is mentioned here. नहीं, बस अच्छे से नहीं दिया है. सेमी एवरग्रीन वेट एवरग्रीन के साथ ही उन्होंने मिक्स करके बता दिया है ना. यहाँ पे what are the characteristics? It is found in regions with comparatively lower rainfall than evergreen forests. ठीक है, slightly lower rainfall रहेगा and transitional type रहेगा. It will be between tropical evergreen and tropical deciduous forests. ठीक है, and it is a mixture of evergreen trees and moist deciduous trees. There is presence of climbers, undergrowth, ये सब less dense than evergreen forests, and the dry season is longer than that in tropical evergreen forests. ठीक है, important flora की examples क्या क्या हैं, we have white cedar. वाइट सडार को आर्बोरविटे भी बोलते हैं. ठीक है, ये ऐसे कॉनिफरस सा ट्री रहता है, कॉनिफरस टाइप ही रहता है, एंड यू माइट हैव सीन दिस इज ऑफन यूज्ड एज एन ऑर्नामेंटल प्लांट. ठीक है, सो ऐसे बड़े कहीं पे आप जाएं, बड़े होटल्स वगैरह में, दिस इज़ यूज्ड एज एन ऑर्नामेंटल प्लांट. ठीक है, दिस इज़ वाइट सडार या आर्बोरविटे, आर्बर. ठीक है, then we also have होलोक. होलोक वही टिम्बर का काइंड है, इट हैज़ रेड फ्लावर्स, है ना, यूज फॉर टिम्बर. ठीक है, देन वील मूव टू ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट्स. ठीक है, सो दिस इज़ द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट टाइप इन इंडिया, है ना. पूरा इंडिया में इट इज़ प्राइमरली डेसिडुअस फॉरेस्ट ओनली दैट आर प्रेजेंट. क्लाइमेटिक कंडीशंस में रेनफॉल का कितना रहेगा, less than 200. So from 70 to 200 centimeters will be the rainfall. ठीक है, classification based upon availability of water देखते हैं. So there is tropical deciduous के there are two types, subtypes, moist deciduous forests and dry deciduous forests. ठीक है, moist deciduous में क्या होगा, rainfall is around 100 to 200 centimeters and dry वाले में 70 to 100. ठीक है, पहले सब में 200 तक जा रहा था, है ना, अबव 200. ये भी हल्का सा अबव 200, बट नाउ इट विल बी बिलो 200. तो 70 to 100, देन 100 to 200. ठीक है, moist deciduous में there will be warm humid climate and trees will be shedding their leaves during the dry season.
and the same goes for dry deciduous also. The leaves will shed during the dry season again. ठीक है. And location क्या है moist deciduous की? It is located in northeastern states, foothills of Himalayas, eastern slopes of western Ghats, है ना, जहाँ पे थोड़ा सा रेन शैडो रीजन है वहाँ पे. देन उड़ीसा, छोटा नागपुर प्लेट्यू, मणिपुर, मिजोरम. ड्राई रेसिडुअस का वही पेनिनसुलर इंडिया के जो ड्राई रीजन्स है वहाँ पे, प्लेन्स ऑफ यूपी बिहार, ट्रांजिशनल जोन्स बिटवीन मॉइस्ट रेसिडुअस एंड थॉर्न फॉरेस्ट. ठीक है, वेस्टर्न पोर्शन ऑफ इंडिया में. ठीक है. नाउ वील सी द एग्जांपल्स ऑफ ट्रीज एंड फ्लोरा फाउंड हियर. सो जो भी नाम आपने सुने हुए हैं, है ना, जो कॉमनली नाम सुने हैं, दोज जनरली लाई इन ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट्स के टाइप्स. मतलब ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्रीज के टाइप्स रहते हैं वो. ठीक है, जैसे टीक है, टीकवुड, साल, शीशम, महुआ, कुसुम, बैम्बू, हरा, अर्जुन, all of these are tropical deciduous trees. Then similarly for dry ones also देखो, आमला, सेमुल, तेंदू, पलाश, अमलता, बेल, खैर, axlewood, sandalwood, all of these are dry deciduous trees. ठीक है. Now we'll look at the indigenous communities which are present here. तो ये वही सेंट्रल इंडिया और छोटा नागपुर प्लाट्यू यहाँ वाले रीजन्स में. तो बैगा ट्राइब्स हैं, गोंड, भील, संथल. ठीक है, ऑल ऑफ दीज आर प्रेजेंट. वही छत्तीसगढ़, झारखंड, इवन पार्ट्स ऑफ एमपी, यहाँ सब जगहों पे. ठीक है. नाउ while teak is found in moist deciduous areas, it is also the star species of dry deciduous and scrub forests in the plateau region of Karnataka and Tamil Nadu. ठीक है, so teak is found at a lot of places. ठीक है, ये दिया है यहाँ पे. Next we'll move to the tropical thorn forests. Now tropical thorn forests में climatic conditions is that the rainfall will be lesser than 50 centimeters. ठीक है, तो ये डेजर्ट एरियाज के पास में जा रहे हैं हम लोग. इसमें सेमी एरिड रीजन्स ऑफ साउथ वेस्ट पंजाब, हरियाणा, है ना, राजस्थान, गुजरात, एमपी, यूपी, ऑल ऑफ दीज प्लेसेस. ठीक है, सो लेस दैन 50 सेंटीमीटर्स में रहेगा. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? अडेप्टेशन टू ड्राई क्लाइमेट, succulent stems, thick and small leaves, long deep roots, and the plants will be almost leafless and scrub like appearance रहेगा. टसकी ग्रास विल ऑल्सो बी देयर एज एन अंडरग्रोथ. ठीक है, सो मोस्टली जो डेजर्ट में मिलता है वही सब. ठीक है. एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लोरा आर बबूल, बेर, एनीथिंग जो भी जिसमें थॉर्न वगैरह रहेगा ना वो सब. एंड इवन सम वेराइटीज ऑफ कैक्टस एज वेल. ऑल ऑफ दीज विल कम अंडर ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट. ठीक है. वाइल्ड डेट पाम, खैर, नीम, खेजरी, अलाश, अकाकियास, पाम्स, यूफोरबिया. यूफोरबिया इज अ टाइप, मतलब कैक्टस जैसा दिखता है कुछ. ठीक है. एंड देन एक्चुअल कैक्टस. इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ क्या है यहाँ पे? राजस्थान साइड में वी हैव द बिश्नोई कम्युनिटी, है ना, कम्युनिटी वही जो ब्लैक डियर वाले है ना, वही लोग. ठीक है. देन वील मूव टू माउंटेन फॉरेस्ट. So mountain forests are in the mountains as the name suggests. Northern mountain forests बोल सकते हैं. General feature क्या है? Vegetation succession with altitude. So first of all you have tropical, then temperate, फिर alpine और last में tundra. ठीक है, tropical, temperate, फिर alpine आएगा, फिर tundra आ जाएगा लास्ट में. ठीक है. ऑल्टीट्यूडनल जोनेशन भी देख लेते हैं. फुट हिल्स पे क्या रहेगा? वील बी हैविंग डेसिडुअस फॉरेस्ट्स. देन फ्रॉम 1000 to 2000 meters you will be having wet temperate forests and evergreen broadleaf trees जैसे oak, chestnut, etc. These are found in northeastern hills, West Bengal hills and Uttarakhand. ठीक है. फिर 1500 से 1750 मीटर्स तक यू विल हैव पाइन फॉरेस्ट्स प्लस चर पाइन. ठीक है. फिर वेस्टर्न हिमालय में क्या है? दियोदार, कंस्ट्रक्शन वुड, चिनार एंड वॉलनट. ठीक है. फिर वील बी लुकिंग एट कश्मीर. हाँ, यहाँ इन्हीं चीज़ों से कश्मीर हैंडीक्राफ्ट्स भी बनाते हैं. फिर इफ़ यू मूव फर्दर अप 2000 to 3000 मीटर्स, ब्लू पाइन, स्प्रूस, टेम्परेट ग्रासलैंड्स वाला टाइप आ जाएगा, है ना. सो
and this will be a transition zone and they'll be going to अल्पाइन वेजिटेशन, ठीक है। 3000 to 4000 क्या रहेगा, सिल्वर फर, जुनाइपर, बर्च, रोडोडेंड्रॉन, ठीक है। और अबव 4000 वील हैव मॉसेस, लिचन्स, लाइकन्स, टुंड्रा वेजिटेशन एट्सेट्रा, ठीक है। सर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट लोकेशन क्या रहेगा, वेस्टर्न घाट्स, विंध्याचल रेंज एंड नीलगिरीज। कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सब ट्रॉपिकल वेजिटेशन दैट इज लोअर स्लोप्स पे, देन हायर स्लोप्स पे वी विल बी हैविंग टेम्परेट वेजिटेशन, फिर इट इज़ प्राइमरीली फाउंड इन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, ठीक है। इट अकर्स अराउंड 1500 मीटर्स अबव द सी लेवल, ठीक है। अब जो शोलाज होते हैं दे आर नथिंग बट स्टंटेड मॉन्टेन एवरग्रीन फॉरेस्ट, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शोला, शोला से स्टंटेड, एस एस, ठीक है। स्टंटेड मॉन्टेन एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, दे आर इन शेल्टर्ड वैलीज ऑफ साउथ सर्दर्न इंडियन हाईलैंड्स and they're surrounded by rolling mountain grass on exposed hilltops and slopes, forming thus shola grassland ecosystems of the western ghats, ठीक है। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट ट्रीज क्या क्या है यहाँ पे, वी हैव मैग्नोलिया, लॉरल, सिंकोना एंड वाटर, ठीक है। दीज आर कॉनिफरस टाइप्स ऑफ ट्रीज, इसका नाम ही जैसे सिंकोना, कोन, कोन मतलब वो कॉनिफरस टाइप का ही कुछ रहेगा, ठीक है। इवन वाटर, वाटर फॉर दैट मैटर, then magnolia, laurel, all of these. Traditional communities which are found in these mountain forests are लद्दाख में चंगपा करके एक ट्राइब है, देन गुज्जर्स हैं गुजरात साइड, नहीं 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 गुजरात नहीं, ये वहीं पे है, ठीक है। हिमालयाज साइड में ही है, जम्मू कश्मीर। बकरवाल्स अगेन यहाँ ऊपर ही हैं, जम्मू कश्मीर साइड। गड्डीज एंड भूतियाज है ना, हिमाचल, जम्मू कश्मीर यहाँ पे है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट है मेजर ग्रासलैंड्स ऑफ इंडिया, की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्थ वेस्ट में देखते हैं हम लोग, गुजरात साइड वी हैव द बन्नी ग्रासलैंड्स, दीज आर प्राइमरली एरिड, है ना, ठीक है। तो एरिड ग्रासलैंड्स हैं यहाँ पे, सीजनल मार्शी ग्रासलैंड्स, ग्रासेस रहेंगी, सलाइन सॉइल रहेगा। फ्लोरा में देर विल बी हैलोफाइटिक ग्रासेस लाइक सेंक्रस सिलियारिस, ठीक है, ये सब रहेगा फ्लोरा के टर्म्स में। फाउना के टर्म्स में वील बी हैविंग चिंकारा, डिजर्ट फॉक्स, माइग्रेटरी बर्ड्स, ठीक है, ये सब। चिंकारा इज़ अ काइंड ऑफ अ डियर और समथिंग, ठीक है। फिर डिजर्ट फॉक्स रहेगा कोई, फिर माइग्रेटरी बर्ड्स भी रहेंगी, ठीक है। उसके अलावा देन देर आर सेंट्रल इंडियन ग्रासलैंड्स, ड्राई सवाना, सो दीज आर फाउंड इन सेंट्रल इंडिया, एमपी, महाराष्ट्र, ये सब जगहों पे, है ना। ड्राई डेसिडस सवाना टाइप का कुछ रहेगा वहाँ पे। एंड फ्लोरा में ये सहिमा, नर्वोसम एंड डिकैंथियम, ठीक है। फाउना में भी आप ब्लैक बक पता ही है हमको, इंडियन वुल्फ है, गौर, ठीक है, ये सब एनिमल्स हैं। फिर हिमालयन फुट हिल्स देखो, जो फ्लोरा है ना, एक बार पढ़ लो, आई डू नॉट थिंक दैट यू हैव टू रिमेंबर, मतलब इतना ज़्यादा तो कहाँ लर्न कर पाएंगे, ठीक है। जो फ्लोरा है जस्ट रीड द नेम्स एंड गो, सो दैट इफ़ यू आर एबल टू रिकग्नाइज इट इन द एग्ज़ाम सो यू डू इट, बट वैसे यहाँ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो साइंटिफिक नेम दिया है, जस्ट नो द नॉर्मल नेम, जैसे एलिफेंट ग्रास है ना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, उसका साइंटिफिक नेम डू नॉट बॉदर गेटिंग इनटू इट, ठीक है। यहाँ पे भी हैलोफाइटिक ग्रासेस, मतलब कि समथिंग विच इज़ हैलोफाइटिक, वो रहेगा। एक रहता है, जस्ट लेट मी टेल यू व्हाट हैलोफाइटिक एग्जैक्टली मीन्स। हैलोफाइटिक, हाँ, सो हैलोफाइट वही होता है, प्लांट्स दैट आर अडेप्टेड टू लिविंग इन सॉइल कंटेनिंग अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, ठीक है। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट वाला जो जगह पे, सॉइल पे जो प्लांट रहता है, दैट विल बी नोन एज अ हैलोफाइट, ठीक है। एंड यहाँ पे देर आर हैलोफाइटिक ग्रासेस एंड इनको बन्नी ग्रासलैंड्स बोलते हैं, ठीक है। देन ये सेंट्रल इंडिया ग्रासलैंड्स हो गए, ड्राई सवाना टाइप। देन वी आर लुकिंग एट हिमालयन फुट हिल्स, वहाँ पे क्या रहेगा, तेरई, द्वार, सवाना, ठीक है। तेरई, तेरई रीजन है आफ्टर हिमालयास, है ना, और वहाँ पे तेरई, द्वार, सवाना बोलते हैं। दीज आर floodplains having tall dense grasses, ठीक है। एंड एलिफेंट ग्रास इज वेरी कॉमन हियर, and fauna found is rhinoceros,
टाइगर, एलिफेंट, ये सब। ठीक है, फिर वी लुक एट सेंट्रल इंडियन ग्रासलैंड्स, ड्राई सवाना, वो हो गया हमारा, है ना। अच्छा, अभी नेक्स्ट है शोला ग्रासलैंड कॉम्प्लेक्स। सो ये वेस्टर्न घाट साइड में रहेगा शोला ग्रासलैंड्स। ठीक है, सो दीज आर हाई ऑल्टीट्यूड स्टंटेड एवरग्रीन फॉरेस्ट्स। ठीक है, दीज आर स्टंटेड एवरग्रीन फॉरेस्ट पैचेस जिनको शोलास बोलते हैं, दे आर अमिड्स द ग्रासलैंड्स। ठीक है, फ्लोरा का नाम दिया है इन्होंने क्राइसोपोगोन जेलिनानिकस। फाउना देख लो, नीलगिरी तहर और नीलगिरी लंगूर। ठीक है, देन वी लुक एट एल्पाइन मीडोज। ये दीज विल बी अबव द ट्री लाइन एंड दे हैव अ वेरी शॉर्ट ग्रोइंग सीजन। फ्लोरा में कोब्रेसिया, कैरेक्स, मेडिसिनल हर्ब्स, ये सब। फाउना में क्या रहेगा, देयर विल बी स्नो लेपर्ड, मस्क डियर and Himalayan monal. So this will primarily be in the Himalayan regions, है ना, ये हाई ऑल्टीट्यूड्स पे। वहाँ स्नो लेपर्ड, मस्क डियर और ये मोनल, ये सब मिलेंगे, है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मैनग्रोव्स। सो मैनग्रोव्स ग्रो अलोंग कोस्टल एरियाज इन सॉल्ट मार्शेस, टाइडल क्रीक्स, मड फ्लैट्स, एस्चुरीज, है ना। दे आर कंपोज ऑफ सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट स्पीशीज जिनको हैलोफाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर मेजर एरियाज ऑफ अकरेंस क्या कहाँ कहाँ है, और मेजर एरियाज ऑफ अकरेंस ऑफ दिस थिंग मैंग्रोव्स कहाँ है, डेल्टाज ऑफ गंगा, महानदी डेल्टा, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी। ठीक है, यहाँ सब पे ईस्टर्न कोस्ट में जो भी डेल्टाज है ना, ऑल ऑफ दोज विल बी हैविंग मैंग्रोव्स। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी जो ट्रीज हैं यहाँ वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश साइड में, these are known as sundari trees, and this entire area is known as the Sundarban area, Sundarban Delta region. ठीक है, और ट्रीज का नाम है सुंदरी। अंडमान निकोबार आइलैंड्स, दे इंक्लूड मैनग्रोव, evergreen forests, deciduous forests, due to their tropical equatorial climate, high rainfall and extensive coastline. सो मैनग्रोव कवर इन इंडिया कितना है, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली, देखो हमारा कोस्ट लाइन जो मेन लैंड का है, इट इज़ नियरली 7800 किलोमीटर और सो, है ना, मेन लैंड का। नहीं तो 13,000 कुछ हो जाता है। ठीक है, टोटल कवर ऑफ मैंग्रोव्स उसमें से कितना है, 5,000। ठीक है, तो 8,000, 7,800 कम्स आउट टू बी 8,000। ठीक है, और वैसे इफ़ यू लुक एट द इंटायर कवर, मतलब इंटायर कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग दैट ऑफ आइलैंड्स, इट कम्स आउट टू बी समवेयर नियर 13,000। ठीक है, उसमें से 5,000 तो इज़ प्योरली मैनग्रोव कवर। ठीक है, हाँ ये पता होना चाहिए। देन दैट इज़ 0.15% of the total geographical area. So net decrease, it has also decreased a little bit over some time. So 7.43 square kilometers decrease हुआ है since 2021। ठीक है, 7 किलोमीटर, 7 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, देन नेक्स्ट है रीसेंट स्टेट वाइज चेंजेस। सो गुजरात में देर हैज़ बीन अ डिक्रीज ऑफ मैनग्रोव्स बाय 36.39 स्क्वायर किलोमीटर्स। आंध्र प्रदेश में देर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन the amount of mangroves by 13 square kilometers. Then we have Maharashtra, again increase हुआ है। How will you remember this, देखो बस गुजरात में डिक्रीज हुआ है, वाई, इसको बस ऐसे लिंक कर लो। आजकल देर इज़ अ लॉट ऑफ न्यूज़ दैट जो बहुत बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, है ना, जैसे अडानी, इन लोगों को दे हैव बीन गिवन अ लॉट ऑफ फॉरेस्ट लैंड एट वेरी लो प्राइसेस इन ऑर्डर टू क्लियर ऑफ दैट लैंड एंड कुछ भी इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए और फॉर सम अदर पर्पसेस। ठीक है, तो ये अंडमान निकोबार में भी काफ़ी हुआ है। अराउंड 100 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ लैंड हैज़ बीन गिवन एंड दैट टू गुड फॉरेस्ट लैंड हैज़ बीन गिवन। ठीक है, तो उससे आप कर लो कि ये गुजरात में ही है ये लोग सब, तो यहाँ गुजरात में कम कर रहे हैं ये लोग। मैनग्रोव हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाय 36.36 स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है, now state wise area, this is very very harmful for the environment because see
मैनग्रोव्स और फॉरेस्ट दे एक्ट एज द लाइफ लाइन, दे एक्ट एज द लंग्स ऑफ द कंट्री, है ना. सो इफ दे आर बीइंग मिसयूटिलाइज्ड देन इट इज़ वेरी वेरी ग्रेव सिचुएशन. ठीक है. नाउ स्टेट वाइज एरिया देख लेते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में. सो द मैक्सिमम एरिया ऑफ मैनग्रोव्स विल बी इन वेस्ट बंगाल. नेचुरली वहाँ पे सुंदरबन डेल्टा रीजन है ना, दैट इज़ वाई. उसके बाद में कम्स गुजरात. ठीक है. तो उसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट, यहाँ पे सुंदरबन है, यहाँ पे वी हैव गुजरात. ठीक है. देन उसके बाद में वी हैव अंडमान निकोबार आइलैंड्स, फिर उसके बाद आंध्रा. ठीक है. तो ऐसे कर लो, यहाँ पे सबसे पहले ईस्ट में, फिर वेस्ट में, देन एकदम साउथ में अंडमान. साउथ ही हो गया ऑलमोस्ट, है ना. देन यहाँ से थोड़ा सा इस साइड चले गए, वील हैव आंध्र प्रदेश. ठीक है. उसके बाद में कहाँ पे है, महाराष्ट्र. सो आंध्र से और इधर को महाराष्ट्र. देन महाराष्ट्र के बाद में फिर उड़ीसा, देन तमिलनाडु. सो तमिलनाडु. ठीक है. और उसके बाद में गोवा, केरला, कर्नाटका, पुडुचेरी. सो यू डू नॉट हैव टू रिमेंबर बाकी छोटे वाले, दे आर नॉट एज इम्पोर्टेंट, है ना. गोवा, केरला, ये सब तो चलो ठीक है. द फर्स्ट फ्यू आर वेरी इंपॉर्टेंट, कर्नाटका, केरला एंड पुडुचेरी. पुडुचेरी विल बी हियर तमिलनाडु में. ठीक है. सो वेस्ट बंगाल, गुजरात, अंडमान, देन यू हैव आंध्र प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उड़ीसा. ठीक है. एटलीस्ट दिस मच यू शुड बी नोइंग, है ना. उसके बाद यहाँ पे अगर लास्ट 4 देखें तो गोवा है, गोवा के बाद केरला, कर्नाटका एंड पुडुचेरी. ठीक है. सो अच्छा, हाँ, यू नीड टू रिमेंबर द नेम्स एज वेल. नाम दिया है इनका, नहीं. चलो ठीक है. बस ये याद रखना, सुंदरबंस वेस्ट बंगाल में है. उड़ीसा में जो भीतरकनिका नेशनल पार्क वो सब है ना, तो भीतरकनिका एंड महानदी की डेल्टा पे देर आर मैनग्रोव्स. देन यहाँ पे गोदावरी कृष्णा की डेल्टा में आंध्रा में देर इज अगेन अ मैनग्रोव, कोरिंगा एंड गोदावरी कृष्णा डेल्टा बोलेंगे इसको. ठीक है. देन पिछावरम एंड कावेरी डेल्टा, तमिलनाडु. ठीक है. पिछावरम एंड कावेरी डेल्टा. देन अंडमान निकोबार में तो है ही. फिर केरला कोस्ट पे है, कन्नूर के पास में, लक्षद्वीप आइलैंड्स पे है, कर्नाटका कोस्ट, कारवार, गोवा कोस्ट पे है, महाराष्ट्र कोस्ट पे है, गल्फ ऑफ कच्छ में है, गल्फ ऑफ खम्बट में. ठीक है. ये सब चीज़ जगहों पे वी हैव द मैनग्रोव्स. ठीक है. देन वी विल बी लुकिंग एट द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ऑफ 2023. तो यहाँ पे क्या है, टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है, टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कितना है इंडिया का. इट इज़ अराउंड 25% ऑफ द टोटल लैंड. ठीक है. और बस इसमें से ओनली फॉरेस्ट कवर कितना है, अराउंड 22%. 20% मान के जस्ट राउंड इट आउट ऑफ टू 20. तो 20% हमारा फॉरेस्ट एरिया है एंड 5% अप्रोक्सीमेटली इज़ द ट्री कवर. ठीक है. नाउ मैक्सिमम इंक्रीज इन, अच्छा, अकॉर्डिंग टू द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ऑफ 2023, एक तो ये वाला मेट्रिक लर्न होना चाहिए, है ना. देन मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, सबसे ज़्यादा किसका इंक्रीज हुआ है, छत्तीसगढ़ का. ठीक है. छत्तीसगढ़, देन यूपी, देन उड़ीसा. एंड मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर ओवरऑल, सबसे ज़्यादा मिजोरम का, देन गुजरात एंड देन उड़ीसा. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये दिस मे बी आस्क्ड. ठीक है. तो इसको लर्न करते हैं. देखो, मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कहाँ पे हो रहा है, पूरा ट्री भी बढ़ रहे हैं. तो ट्री कहाँ पे बढ़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में. छत्तीसगढ़ का क्या है, कैपिटल क्या है, रायपुर, है ना. तो आप इमेजिन करिए कि वो वहाँ पे उस साइड में देर इज़ एन इंक्रीज इन द, जैसे सिटी के अंदर जो ट्रीज़ होते हैं, है ना, वो सब बढ़ते जा रहे हैं. सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दैट, है ना. और यूपी में भी बढ़ रहा है. सी यूपी इज़ वन ऑफ, इट इज़ द लार्जेस्ट स्टेट एज फार एज आई नो, है ना. तो यूपी लार्जेस्ट स्टेट है. तो नेचुरली व्हाट विल हैपन इज़ दैट वहाँ का एरिया विल बी मोर, सो ऑटोमेटिकली द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर विल ऑल्सो बी मोर. ठीक है. तो वो उससे हो गया सेकेंड यूपी. थर्ड है उड़ीसा. तो उड़ीसा का ऐसे लर्न कर लो कि वहाँ पे इतना सुना नहीं रहता है हमने उड़ीसा के बारे में, तो वहाँ
पेड़ पौधे ही होंगे और ज़्यादा लोग नहीं रहते होंगे, ठीक है, ऐसे यू कैन जस्ट रिमेंबर इट दैट वे. देन राजस्थान, दिस इज सरप्राइजिंग कि राजस्थान इज द फोर्थ वन हु हैज़ इंक्रीज्ड इट्स फॉरेस्ट एंड ट्री कवर. नाउ इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर का देखेंगे बस, तो वी हैव मिजोरम, गुजरात एंड ओडिशा, ठीक है, MGO. मिजोरम में सबसे ज़्यादा हुआ है इंक्रीज, देन वी गो टू गुजरात एंड देन वील गो टू ओडिशा, ठीक है. मिजोरम कहाँ, ऊपर यहाँ पे है ना. मिजोरम में 1, गुजरात एंड थर्ड क्या है, ओडिशा. ये थर्ड ओडिशा, ठीक है, ये हो गया. देन हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर कहाँ का है, देखो लक्षद्वीप हैज़ द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर ऑफ अराउंड 91.33%. सेकेंड हाईएस्ट है मिजोरम में, थर्ड हाईएस्ट इज इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है. तो ये 91.33 है, मिजोरम में 85% है, और अंडमान निकोबार में 81% ऑफ द लैंड इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट्स, ठीक है. एंड वी, एज यू नो, वी हैव 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, है ना. इनमें से 19 ऑफ देम आर सच दैट हैव मोर देन 33% फॉरेस्ट कवर, ठीक है. एंड देर आर 8 states and union territories who have above 75% फॉरेस्ट कवर, ठीक है. सो 3/4 से ज़्यादा तो उनका फॉरेस्ट ही है, ठीक है. तो ये कौन से हैं, 19 स्टेट्स हैं, या एंड अलॉन्ग विद दैट 8 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज. तो इसको कैसे लर्न करोगे, 8 का डबल कितना होता है, 18 प्लस 1 19. सो 19 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, they have more than 33% as the forest cover, and out of those 8 are such जिनका 75% से ज़्यादा forest cover है, ठीक है. Now mangrove cover, as we had read above, it is around 5,000 square kilometers, that is 4,992 square kilometers, ठीक है. अभी हमने मैंने ऊपर जो बताया था ना, दिस वॉज द टोटल कवर, ठीक है. सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट, ये जो मैं बात कर रही थी कोस्ट लाइन, वो कोस्ट लाइन का लेंथ था, दैट वाज नॉट द एरिया, ठीक है. सो आई थिंक आई मेड अ मिस्टेक ओवर हियर, बट ये बस ऐसे लर्न करने के लिए ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, बट दिस इज़ नॉट द एरिया, है ना, दिस इज़ द लेंथ, वेयर एज दिस इज़ एन एरिया, ठीक है. सो बी केयरफुल विद दैट. देन एनुअल पोटेंशियल टिम्बर प्रोडक्शन, टिम्बर मतलब ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट से कितना होता है, इट इज़ अराउंड 91.5 मिलियन. सो ये इतना अभी क्यूबिक मीटर्स, इतना नहीं याद करने की ज़रूरत, बस थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है. फिर लार्जेस्ट फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कहाँ का है, सबसे ज़्यादा इज़ ऑफ मध्य प्रदेश, देन कम्स अरुणाचल प्रदेश एंड लास्टली महाराष्ट्र, ठीक है. सो सबसे बड़ा फॉरेस्ट और ट्री कवर इंडिया में इज़ इन मध्य प्रदेश, आफ्टर दैट यू गो टू अरुणाचल एंड देन महाराष्ट्र कम्स, ठीक है. और मैक्सिमम इंक्रीज छत्तीसगढ़, यूपी वगैरह में हुआ था, ठीक है. सो दैट इज़ डिफरेंट, और ये वाला भी डिफरेंट है ना. नेक्स्ट देख लेते हैं. हम्म, ठीक है. सो 21 और 23 का डेटा को यहाँ कंपेयर करा है. सो अर्लियर 21 में 24% था टोटल फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर, अभी 25% ऑफ द टोटल लैंड, है ना. नाउ नेट फॉरेस्ट कवर वॉज अराउंड 21.71, अभी 21.76 है. नेट ट्री कवर इज अराउंड 2.91, पहले था 3.41 है अभी. टोटल मैनग्रोव कवर पहले ज़्यादा था, अभी कम हो गया, 4992 हो गया है, ठीक है. नाउ टॉप स्टेट्स विद लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर, सो वी हैव MP, देन अरुणाचल एंड छत्तीसगढ़, ठीक है. अच्छा, छत्तीसगढ़ है, ये एरिया वाइज दिया है ना. यहाँ पे क्या दिया था, महाराष्ट्र दिया था, ठीक है. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, देख लेते हैं एरिया वाइज और परसेंटेज वाइज में तो वी नो कि लक्षद्वीप सबसे ज़्यादा आएगा, देन मिजोरम एंड देन अंडमान निकोबार. एरिया वाइज में देर इज़ सम कन्फ्यूजन हियर, यहाँ ऊपर थ्योरी में वो लिखा है कि महाराष्ट्र इज़ द थर्ड वन, वेयर एज इन दिस डायग्राम
Chhattisgarh has been told to be the third highest one. ठीक है. Then top states with the largest tree cover. So सबसे ज़्यादा ट्री कवर कहाँ है एरिया वाइज. ट्री कवर की बात हो रही है, फॉरेस्ट कवर की नहीं. ठीक है. अच्छा, देखो ये क्या था, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर. ये है बस फॉरेस्ट कवर और ये है बस ट्री कवर. ठीक है. तो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में मिला के मध्य प्रदेश विल बी द हाईएस्ट, सेकेंड विल बी अरुणाचल एंड थर्ड विल बी महाराष्ट्र. नाउ ओनली फॉरेस्ट कवर देखें तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल एंड छत्तीसगढ़. देन ओनली ट्री कवर देखें अगर तो महाराष्ट्र, राजस्थान एंड यूपी. ठीक है. वाई? बिकॉज देखो महाराष्ट्र में तो ऐसे आप इमेजिन करिए कि बॉम्बे, पुणे, यहाँ पे बहुत ट्रीज वगैरह काफ़ी हैं फॉर अर्बन फॉरेस्ट्री पर्पसेस. ठीक है. राजस्थान में क्यों? बिकॉज वहाँ पे actively the government had taken up this responsibility कि they will be increasing the number of trees. ठीक है. सो दे प्लांटेड अ लॉट ऑफ खेजरी ट्रीज और ये सब काफ़ी प्लांटेशन किया था 1970s में. ठीक है. सो ट्री कवर इज़ वेरी हाई, फॉरेस्ट कवर इज़ नॉट वेरी हाई इन राजस्थान. ठीक है. देन यूपी का भी ट्री कवर काफ़ी बड़ा है. ठीक है. एंड वाई इज इट सो? बिकॉज यूपी का एरिया ही बड़ा है. ठीक है. नेक्स्ट है परसेंटेज वाइज अगर देखें तो लार्जेस्ट ट्री कवर इज़ इन चंडीगढ़. चंडीगढ़ इज़ अ प्लांट सिटी, वेरी ब्यूटीफुल सिटी. सो दे हैव अ लॉट ऑफ ट्रीज प्लांटेड एट प्लेसेस, है ना. देन दिल्ली सेकंड आता है और थर्ड वी हैव केरला परसेंटेज वाइज के टर्म्स में. ठीक है. तो दिल्ली में भी सिंस इट इज़ द कैपिटल दे प्लांट लॉट ऑफ ट्रीज, है ना. काफ़ी सारे ट्रीज वगैरह हैं वहाँ पे. केरला में भी काफ़ी है ट्री कवर. नाउ वील बी लुकिंग एट particularly vulnerable tribal groups of India and the associated forests. ठीक है. and states with the most PVTGs also we will be looking at them. So यहाँ diagram में as you can see the green portions जो अलग अलग highlight अलग अलग shades में है that represents the types of forests. ठीक है. तो वो हमने ऊपर पढ़ लिया है, so we won't be bothering with that over here. सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, पीवीटीजीज के नाम, है ना. सो राजस्थान में एक पीवीटीजी है सहारिया ट्राइब करके. ठीक है. तो सहारा डेजर्ट से आप सहारिया ट्राइब कर लो. राजस्थान एज द थार डेजर्ट, तो वैसे ही सहारा भी अफ्रीका में एक डेजर्ट का ही नाम है, तो सहारिया ट्राइब लर्न कर लिया. ठीक है. देन गुजरात में देर आर 5 टाइप्स ऑफ पीवीटीजीज. ठीक है. वेट अ सेकेंड. तो इसमें सारे स्टेट्स का यू डू नॉट नीड टू रिमेंबर, एटलीस्ट यू जस्ट नीड टू नो कि ओडिशा में देर आर द हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्राइब्स पीवीटीजेस, दैट इज़ 13. ठीक है. उसके बाद सेकंड हाईएस्ट कहाँ पे आ रहा है, एज यू कैन सी इट इज़ इन बिहार 9. ठीक है. और अभी के लिए उतना ही काफ़ी रहेगा. देन थर्ड हाईएस्ट वुड बी 5, दैट इज़ अंडमान निकोबार आइलैंड्स पे भी और इवन इन केरला. तो जैसे जहाँ जहाँ के दिए हैं इम्पोर्टेंट वाले वो वील जस्ट सी दोज. एक है सहारिया इन राजस्थान. ठीक है. तो सहारा डिजर्ट से सहारिया. फिर गुजरात में एक इम्पॉर्टेंट है कठोडी. ठीक है. कचौरी राजस्थान गुजरात में कचौड़ी का काफ़ी देर इज़ अ ट्रेंड, सो दैट वे यू कैन लर्न इट. देन कर्नाटका में देर इज़ अगेन कठोड़ी. देन कोलम है एक और मरियागोंड. ठीक है. देन कर्नाटका में 2 बार दिया है, देयर इज सम प्रॉब्लम विद दिस. आई थिंक देयर इज सम मिसप्रिंट हियर. ठीक है. कर्नाटका में जेनु कुरुबा और कोराग भी है ना. देन केरला में देर इज चोला नायकन, है ना. हमने चोला से लर्न करा था. देन कदर, कटू नायकन, कोराग एंड कुरुम्बास. ठीक है. सो दीज आर द 5 विच आर प्रेजेंट इन केरला. आंध्र प्रदेश में वी हैव इरूलर, कटू कटू नायकन, फिर से कोटा, फिर से कुरुम्बास, देन पानियन एंड तोड़ा. ठीक है. फिर अंडमान निकोबार में वी हैव ग्रेट अंडमानीज, जरावा, ओंगे, सेंटिनलीज ट्राइब एंड शोम्पेन. ठीक है. देन वेस्ट बंगाल में बिरहोर, लोधा, टोटो. फिर त्रिपुरा में रियांग है फेमस.
देन मणिपुर में मरम नागा, ठीक है। उत्तराखंड यूपी में बक्सा और रांची, ठीक है। उड़ीसा के देख लेते हैं, जो 13 है उनके, देर इज़ बिरहोर। यू जस्ट नीड टू रीड दीज अ कपल ऑफ टाइम्स सो दैट वहाँ पे आ गया तो यू आर एबल टू रिकग्नाइज इट, ठीक है। इनको बाय नेम लर्न करना विल टेक ever forever and it is not possible to learn so much information, ठीक है। you have a lot of other subjects to study as well, so I would just suggest you to go through these a couple of times and then you should be good to go, ठीक है। बिरहोर, बोंडो, दिदाई, दोंगरिया कोंड, जुआंग, खारिया, कुटिया, कोंद, लांजिया सॉरस, लोधास, मंकिदियास, पौडी बुआन्स, सोरा, चुक्तिया भुंजिया, ठीक है। दीज आर द मेन ट्राइब्स पीवीटीजीज, ठीक है। देन वी लुक एट द पीवीटीजीज ऑफ आंध्रा। आंध्रा में क्या क्या है, यू हैव बोडो, गडाबा, बोंडो पोरोजा, देन चेंचू, डोंगरिया, डोंगरिया खोंड, गुटुब गोडाबा, खोंड पोरोजा, कोलम, कोंडा रेडिस, कोंडा सवारस, कुटिया खोंड, परेंगी पोरोजा एंड थोटी, ठीक है। दीज आर ऑल द ट्राइब्स विच आर प्रेजेंट इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये भी हो गया। नाउ वी लुक एट बिहार एंड झारखंड। वी हैव असुर्स, बिरहोर, बिरजिया, हिल खाड़िया, कोरवास, माल पहाड़िया, परहायाज, सौरिया पहाड़िया, सवार, ठीक है। और ये भी हो गया अभी, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस चैप्टर। ये जो बस ट्राइब्स हैं, यू नीड टू लर्न देम, लर्न तो नहीं, अब वही मैंने बोला ना, 2 बार रीड करके चले जाना, दैट शुड डू। नाउ आई विल जस्ट लुक एट द क्वेश्चंस व्हिच वी हैड लेफ्ट अर्लियर, वेट अ सेकंड। These were the questions which were left. First question, consider the following trees: jackfruit, mahua and teak, ठीक है। जैकफ्रूट क्या है, अच्छा उनका वो भी दिया है, साइंटिफिक नेम दिया है। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर डेसिडुअस ट्रीज, सो ठीक है, दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन, वी हैड जस्ट रेड अबाउट डेसिडुअस ट्रीज। तो जैकफ्रूट इज एवरग्रीन आएगा, ठीक है, वो ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन में आएगा, सो दैट इज़ नॉट डेसिडुअस, ठीक है। देन महुआ है, टीक है, सो ओनली 2 शुड बी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, which one of the following is the best example of repeated falls in sea level giving rise to present day extensive marshland, तो marshland कहाँ पे है, बहुत सारा रन ऑफ कच्छ रीजन में, है ना। नेक्स्ट, which one of the following national parks complete lies completely in the temperate alpine zone, टेम्परेट अल्पाइन जोन में इन सब में से कौन सा है। वैसे व्हेन वी रीड इन्वायरमेंट, उसमें अगर हम लोग जब साइट्स अच्छे से पढ़ लेंगे ना, देन दिस विल बिकम ईजियर, बट द आंसर फॉर दिस विल बी वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, ठीक है। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू स्टेट्स mentioned in the above, mentioned above, in terms of percentage of cover to the total area of the state, which one of the following is the correct ascending order, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में पूछा है हमसे, ठीक है। तो क्या क्या देखो, हमें पता है सबसे ज़्यादा कहाँ पे, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, नॉट इन टर्म्स ऑफ एरिया, सो दिस इज परसेंटेज टर्म्स। फर्स्ट विल बी छत्तीसगढ़, ठीक है, बट वी हैव टू अरेंज देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। सबसे ज़्यादा वहाँ पे है, उसके बाद में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज़ इन दिस थिंग ओडिशा, ठीक है। ओडिशा के बाद में महाराष्ट्र और एमपी में से आई थिंक इट इज़ महाराष्ट्र विच कम्स फर्स्ट, नहीं एमपी में ज़्यादा है, रुक जाओ, आई जस्ट सी, हमने पढ़ा था ना यहाँ पे, ये रहा। सो परसेंटेज वाइज देखो, फॉरेस्ट कवर के टर्म्स में हमें बताना है ना, फॉरेस्ट कवर पूछा है, तो सबसे ज़्यादा एरिया वाइज तो वही पता है, एमपी, अरुणाचल, छत्तीसगढ़, है ना। एंड परसेंटेज वाइज ये है, वेर एज व्हेन इट कम्स टू फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, वो भी एमपी सबसे ज़्यादा है, फिर अरुणाचल है और महाराष्ट्र है, ठीक है।
परसेंटेज ऑफ वो नहीं दिया ना यहाँ पे कहीं पे भी कि एज कंपेयर टू द परसेंटेज ऑफ एरिया। चलो ठीक है, उस क्वेश्चन, दिस इज़ अ टफ क्वेश्चन देन। तो इसके हिसाब से देखें तो देखो, वैसे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा है परसेंटेज वाइज, देन कम्स उड़ीसा एंड देन आई थिंक मध्य प्रदेश, बिकॉज मध्य प्रदेश वैसे ओवरऑल इट हैज़ द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ फॉरेस्ट कवर। ठीक है, देन वील हैव महाराष्ट्र, पर हमको इसको असेंडिंग में लगाना है, सो सबसे लास्ट में आएगा छत्तीसगढ़, फर्स्ट विल बी महाराष्ट्र, सो थ्री शुड बी फर्स्ट, तो इन दोनों में से उसके बाद टू होना चाहिए, तो ये भी है। उसके बाद में वन शुड बी इन द एंड, तो सी शुड बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट्स अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, इन विच ऑफ द above states do tropical wet evergreen forests occur? So this is simple question, अरुणाचल में है, मिजोरम में भी है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में है, तो सी। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इज टीक अ डोमिनेंट ट्री स्पीशीज, सो वो रहता है मॉइस्ट डेसिडुअस में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स हैज अ क्लाइमेट दैट वेरीज फ्रॉम ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड आर्कटिक, सो ऑल, मतलब ऑल टाइप्स ऑफ क्लाइमेट मिलेंगे। सो दिस विल हैपन इन नंदा देवी, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स हैज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनग्रोव फॉरेस्ट्स, एवरग्रीन फॉरेस्ट्स एंड डेसिडुअस फॉरेस्ट्स? सो ये तीनों कहाँ पे हैं? अंडमान निकोबार में। If you travel through Himalayas, you are likely to see which one of the following plants naturally growing there. Oak हाँ रहेगा, rhododendron रहेगा, then sandalwood नहीं रहेगा. This is a deciduous tree. ठीक है, तो आंसर शुड बी वन एंड टू ओनली। ठीक है, so we have done all the questions from this chapter as well. Thank you. That is all for this chapter. Thank you.